حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مجالس ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد، جلوس مقررہ راستے سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوگا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کی گزرگاہ پر آنے والی گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں۔ کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے واپس اسلام آباد روانہ۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ نے الوداع کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیراعظم کی سعودی ولی عہد اور دیگر حکومتی سربراہان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات میں تجارت، شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا اجلاس۔ کرپٹو کونسل کے سی او بلال بن ثاقب نے جامع ویژن اور مشن پیش کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کرپٹو کونسل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹری بارڈرز کو اکٹھا کرے گا۔ کرپٹو کونسل ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے۔ وفاقی کابینہ اراکین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کی منظوری۔ تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور۔ وفاقی وزیر اور وزراء مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کے الاؤنس اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم کی گئی۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے لوگوں کا روزگار چھیننے پر آ گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مرکز بحالی پروجیکٹ کے 182 ملازمین کو ایک ہی دن میں نوکری سے فارغ کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید۔ کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس سرکاری وسائل اور پیسہ احتجاج، جلسے اور مارچ پر خرچ کرنے کے لیے ہر وقت دستیاب ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے گنڈا پور کے پاس فنڈز تک نہیں۔ پاکستان میں پانی کی قلت سنگین مسئلہ ہے۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں، توانائی کے شعبے کے مسائل سے معیشت اور ماحول کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم آب پر پیغام۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی استحکام کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ صاف اور پینے کے لیے محفوظ پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ پانی زندگی کے علامات اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ بڑھتی آبادی، موسمیاتی تبدیلیوں اور بے احتیاطی کے باعث آبی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پانی کے عالمی دن پر موقع پر پیغام۔ کہتی ہیں کہ ہمیں پانی کو بچانے کے لیے عالمی اقدامات کرنے ہوں گے، جبکہ پانی کے مناسب استعمال اور تحفظ کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے منصوبے کی تیزی سے تکمیل خوش آئند ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے لاکھوں بے گھر خاندانوں کو مستقل چھت میسر آ سکے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کے لیے ہر دور میں غیر معمولی اقدامات کرتے رہیں گے۔ 4 لاکھ خاندان مکمل تیار شدہ گھروں میں منتقل ہو چکے۔ گھروں کو مقامی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا کنالز منصوبے کے خلاف 25 مارچ کو احتجاج کا اعلان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ سندھ بھر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دریائے سندھ پر کسی کو بھی کنال نکالنے نہیں دیا جائے گا۔ کنال منصوبے کے خلاف جلسے کریں گے اور گلی گلی احتجاج بھی ہوگا۔ چولستان کنال پر کام کا آغاز کر کے وفاق میں عامریت کا یاد تازہ کر دی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارما خان نے اعتراف جرم سے انکار کر دیا۔ ملزم کے اعترافی بیان کی درخواست خارج۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی حامی بھری، پھر انکار کر دیا۔ اعتراف جرم کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں بھی جیل بھیج دیا جائے گا۔ دوران سماعت ملزم ارما خان نے کہا کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا۔ پاک افغان تورکھم بارڈر 27 روز بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ مسافروں کی آمد و رفت شروع۔ ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والوں کو
आने और जाने की इजाजत होगी। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक सरहद बंद होने से सिर्फ अफगान मरीजों को पाकिस्तान आने की इजाजत दी जा रही है। 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह झड़पें हुई थी, जबकि फायरिंग से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तोरखा में इमिग्रेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। रियासत और हुकूमती शख्सियात की फेक वीडियोस बनाने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को सादिकाबाद से गिरफ्तार किया। FIA से गिरफ्तार FIA के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त गुलाम नबी के नाम से हुई। मुलजिम रियासत सरकारी शख्सियात को नुकसान पहुंचाने के लिए मसनूई जहानत का गलत इस्तेमाल करता था। मुलजिम ने हुकूमती और आला सरकारी शख्सियात की तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने भी ईद उल फितर पर 3 तातीलात का ऐलान किया था। ईद के मौके पर पाकिस्तान रेलवे का टिकटों में रियायत का फैसला। तमाम मेल्स, एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों की टिकटों में 20% रियायत होगी। रियायत रिजर्वेशन काउंटर से करंट बुकिंग पर होगी। मुसाफिर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज करंट बुकिंग पर रियायत हासिल कर सकेंगे। रिलीफ का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर लागू नहीं होगा। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस की बंदिश को 11 दिन हो गए। अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही बहाल की जाएगी। जिला कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम पाकिस्तान के मौके पर रूट प्लान तश्कील दे दिया। 22 मार्च दोपहर 12 बजे से 23 मार्च से दोपहर 3 बजे तक हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के लिए इस्लामाबाद में दाखिला बंद होगा। 23 मार्च सुबह 6 से दिन 1 बजे तक श्रीनगर हाईवे 7th एवेन्यू से कोड़ियावाला चौक तक जाने वाली सड़क के लिए बंद होगी। पेशावर से लाहौर जाने वाली हैवी ट्रैफिक बरास्ता टेक्सला मोटरवे तरनौल फाटक से फतेह जंग मोटरवे इस्तेमाल करें। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मियावाली में TTP का खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, पंफलेट और नकदी भी बरामद कर ली गई। लाहौर से गिरफ्तार खुदकश बमबार शमसुल्लाह ने तफ्तीश में अहम इंकशाफ किए। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार खुदकश बमबार शमसुल्लाह को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। दौरान ट्रेनिंग नशे का इस्तेमाल भी करवाया जाता था। सहूलतकार अली ने खुदकश बमबार को 3 दिन लाहौर में कयाम करवाया। जंडर रोड पर जेर तामीर मकान में दस्ती बम फट गया। वाक़े में 3 अफराद जहां बहक एक जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक घर में मौजूद अफराद के दरमियान तलकलामी हुई। तलकलामी में किसी एक के पास मौजूद दस्ती बम फट गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। अदाकारा नाजिर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। लाहौर की मुकामी अदालत ने 50,000 मचलकों के एवज अदाकारा के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालती हुक्म पर नाजिर जहांगीर वकील के हमरा पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सयाल ने इस्तिगासा केस की समाअत की। नाजिर जहांगीर के खिलाफ 25 लाख गाड़ी वापस न करने का इस्तिगासा दायर है। मजीद कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी, इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब। कहा इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। सलामती कौंसिल को इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। जंग को न रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। गजा पर इसराइल की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज की शुमाली गजा के बैतुल हयाम में मकान पर बमबारी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के कैंप पर 200 पाउंड वजनी बम गिराए। 4 रोज से जारी बमबारी में 200 बच्चों समेत 710 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए।
इसराइल का शुमाली गजा के रिहायशियों को फौरी तौर पर घर छोड़ने का हुक्म। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला, 44 अफराद जहां बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला दोपहर उस वक्त किया जब लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। दहशतगर्दों ने मस्जिद को घेरे में लेकर लोगों को निशाना बनाया। हमलावरों ने मकामी बाजार और घरों को आग लगा दी। वजारत का हमलावरों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाए जाने का अज़्म। नाइजीरियाई हुकूमत का 3 दिन शोक का ऐलान। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। एयरपोर्ट की बंदी से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट का मुकम्मल काम आज कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज एयरपोर्ट के सब स्टेशन में आग लगने से 3000 से ज़ायद परवाजें मंसूख कर दी गई थी। इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस वाक़े की तहकीकात भी कर रही है। चीन की अमेरिका की तरफ से गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियों की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान मॉन्गटिंग का कहना है कि चीन कारोबारी इदारों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम अमेरिकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। हम ईरानी तेल के सबसे बड़े दरामद कुनिंदा हैं। चीन हमेशा गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियों और तवील बाजू की दायरा इख्तियार की गलती इस्तेमाल की मुखालफत करता है। अमरीकी वीज़े के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वीज़ा के जरिए कौमी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला मयार को बरकरार रखा जाएगा। यकीनी बनाया है कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की सलामती के लिए खतरा न बने। पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम करने जा रहा है। अगले माह रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद खेलों को फरोग देना है। ट्रायल्स होंगे, मेरिट पर आने वाले बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों को कौमी क्रिकेट टीम में शामिल करने के इक़दाम कर रहे हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी गलियात और बिंदनवाह में मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान।